بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ. آپ کا انٹرو دینا آج مشکل ہے, لیکن بنیادی باتیں کیوں مشکل ہے وہ میں بتا دیتی ہوں, لیکن بنیادی باتیں جو آج ہیں کہ آج منی بجٹ کے بعد جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی اسد عمر صاحب کی, اس میں انہوں نے کچھ ان سے بنیادی سوال پوچھے گئے تھے, مثلا بجٹ خسارہ کے بارے میں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا, اسی طرح سے ان سے ریونیو جو ڈیفیسٹ ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ بجٹ خسارہ کیسے کم کریں گے. یہ ایک اہم سوال ہے اور یہی ہمارا بھی بنیادی اہم سوال ہے کہ سب کچھ جو کل پیش کیا گیا ہے اس سے پاکستان میں کتنا پیسہ آئے گا, کتنا اکٹھا ہوگا حکومت کے پاس, اور کیا بجٹ خسارہ بھی پورا ہو سکتا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس سال کا یا پتہ نہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ بجٹ خسارہ ہوگا. کیا یہ درست ہے یا نہیں, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. اس کے علاوہ جو آف شور کمپنیوں اثاثوں کے حوالے سے ایک شک شامل کی گئی, اس پہ اپوزیشن نے بہت شور مچایا کہ یہ خاص کر کے جو 1A ایڈ کی گئی ہے, یہ آلریڈی ایک قانون تھا لیکن اس کے اندر ایڈ ہوا ہے آف شور ایسٹس کے بارے میں. اس سے کیا علیمہ خان صاحبہ کو فائدہ ہوگا یا واقعی جن ایمنسٹی مل رہی ہے ایسے لوگوں کو جو ٹیکس چور ہیں, اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے واٹس ایپ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ثانیہ ساہیوال کے اوپر کچھ کیجئے. دوبدو ملاقات آج وزیر اعلیٰ سے ان کو کرنا پڑی ہے. یہ جو ان کے وسیم اکرم ہیں کپتان کے, وہ کیا کر پا رہے ہیں ثانیہ ساہیوال کے اوپر, لوگوں کو انصاف, عوام کو بھی اور خاص کر کے اس خاندان کو انصاف ملے گا کہ نہیں, اس کے اوپر ہم ضرور سوال کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو نعیم الحق صاحب نے کل ایک ٹویٹ 3-4 کیے ہیں, شہباز شریف صاحب کو وارننگ دی ہے کہ چپ کر جائیں ورنہ پھر ہم آپ کو چپ کرانا جانتے ہیں, پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ ہم آپ کے بند کر دیں گے. یہ کیا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ معاملہ ہے اور بھٹی صاحب مستقل ہنسے جا رہے ہیں اس بات کے اوپر. بھٹی صاحب آپ جتنا مرضی ہنس لیں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ آخری والا, اور آخری والا بھی اور باقی تینوں بھی. تو بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم ہے, عوام کی پرزور فرمائش پر میں بھی ہوں. میں بالکل. اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہمارے بہت محترم ہیں. بھٹی صاحب بھی ہیں. امتیاز عالم صاحب بھی ہمارے بہت محترم میں, سینئر صحافی تجزیہ نگار لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ. اور تھوڑی دیر میں سلیم صافی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ وہ بھی پاکستان کے معروف صحافی, کالم نگار, سب کچھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ جو بجٹ کل آیا ہے, عوام جاننا چاہتے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ رہی, آپ کو کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کسی دن بتا دیں گے باہر کسی اور اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس منی بجٹ سے کوئی پاکستان کے کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگلے 6 مہینے تک جب تک کہ فیڈرل بجٹ نہیں آ جاتا؟ چاہے تو بھی دیکھیے ملی جھلی سی پکچر ہے. پہلے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بجٹ نہیں ہے, کیونکہ بجٹ میں جیسے ابھی آپ شاید ڈسکس کریں گی کہ اگر کہیں سے ریونیو کا لاس ہو رہا ہے تو ٹیکسز بھی بتائے جاتے ہیں. اس میں وہ دونوں باتیں نہیں بتائی گئی, اس میں صرف مراعات اور کنسیشنز کے حوالے سے بات چیت کی گئی. دیکھیے 2-4 چیزیں آسما ایسی ہیں جو پہلی کئی حکومتیں جن کا سلوشن نہیں کر پائیں. ان میں سے ایک ہے ٹیکس ریفنڈز کا, سیس ٹیکس ریفنڈ کا, جو انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ 400-450 ارب روپے کے ہمارے ریفنڈز حکومت کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت ساری اسپیشلی ٹیکسٹائل ملیں اور بھی بہت ساری صنعتیں جو ایکسپورٹرز تھیں وہ بند ہو گئیں کہ ان کا ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ تو حکومت اپنے خزانے میں لے گئی اور ان کو ریفنڈ نہیں کر رہی تھی. تو یہ پہلی حکومت ہے کئی حکومتوں کے بعد جس نے کہا کہ ہم ایک پرومسری نوٹ نکالتے ہیں, تو یہ آپ کو حکومت ایک سرٹیفکیٹ لکھ کے دے گی کہ ہم نے آپ کا پیسہ دینا ہے ایلس سے کسی انڈسٹری کا. اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہ وہ ان کو دیکھیے اس میں حکومت کا خزانہ بھی خالی نہیں ہوگا اور جن کے پیسے دینے ہیں ان کو بھی مل جائیں گے, تو ان کا ورکنگ کیپٹل واپس آ جائے گا. میرے خیال میں کچھ ٹیکسٹائل ملیں مزید چل جائیں گی, کچھ انڈسٹریز جو اس وجہ سے بند ہو گئی تھیں جن کے پاس پیسہ واپس چلا جائے گا. اور یہ میڈیم ٹرم ان کا پلان ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. لیکن جو میرا سوال ہے بنیادی وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ بجٹ خسارہ تو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا بلند ترین یہ بجٹ خسارہ ہوگا. دیکھیے ایک بات اور ایڈ کر دوں مثبت حوالے سے, پھر ہم کیونکہ نیگیٹو تو بہت لمبی, پھر آپ پہ آتے ہیں. را مٹیریل کے حوالے سے ایکسپورٹس پاکستان کی جو اتنی تیزی سے گری ہیں, بہت سارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ را مٹیریل استعمال کرتے ہیں اور ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگاتی تھی حکومت. اب اس نے کہا ہے کہ 150 ایسے آئٹم ہوں گے جن کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ دے دی جائے گی, تو وہ را مٹیریل جب ایکسپورٹر کے پاس آئے گا اور پھر وہ پروڈکٹ بنا کے ایکسپورٹ کرنا چاہے گا تو دنیا کی عالمی منڈیوں میں کمپیٹیٹو ہو جائے گا, تو ایکسپورٹ شاید اس سے مزید کچھ بہتر ہو جائیں گی.
اچھا اب آ جائیں بنیادی بیماری، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ معیشت کی بنیادی بیماری ہے جو اب بجٹری خسارے کے حوالے سے وہ بنیادی بیماری ہے. اس بنیادی بیماری کا نہ تو ذکر کیا گیا اور شاید اس بنیادی بیماری کا ان کے پاس آؤٹ آف کنٹرول اخراجات جو صرف سود کی مد میں اس دفعہ کوئی 500 سے 600 ارب روپے اضافی ان کو نکالنے پڑیں گے. اس وقت 1.6 کھرب روپے کی ایلوکیشن کر رکھی بجٹ میں، لیکن میرا خیال ہے کہ صرف سود کی مد میں 2000 ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ اس سال دینی پڑے گی. تو اخراجات حکومت کے مکمل طور پہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور جو ریونیو ہیں وہ بھی مکمل طور پہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ آ ہی نہیں رہا. اس میں بالکل وہ بلکہ نان فائلر کے اوپر پھر چھوٹ مل گئی ہے جو کہ بہرحال سرکولیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ضروری بھی تھا بائی دی وے سرمایہ کاری کے حساب سے. 170 ارب روپے کی شارٹ فال ہے ٹیکس ریونیو میں پچھلے 6 مہینے میں، اور اگر اس کے متعلق کچھ نہ کیا گیا 70 ارب روپے ہمیں نہیں ملے جو ملنے جو عوام سے ہم نے لینے 6 مہینے کی بات. 175 ارب. اب 175 جمع 175 کر دیں، اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ سال کی اینڈ میں 350 ارب بن جائے گا. تو 350 ارب یہ بن گیا اور 500-600 ارب ان کو سود کی مد میں جو اضافی دینا پڑے گا. تو یہ ٹیکہ لگنا ہے. ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ جنوری کی 23 تاریخ کو یہ جو خسارے ہیں ان کے متعلق کچھ علاج بتایا جائے گا کہ یہ ہم نے علاج ڈھونڈا. وہ آپ کو کل نہیں ملا؟ وہ مجھے کل نہیں ملا. بھٹی صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ خسارہ بڑھ گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا؟ اس کے بعد گنجائش ہے؟ نہیں صرف ایک میں عوامی سوال آپ سے، کیونکہ آپ عوامی آدمی ہیں، عوامی تجزیہ نگار ہیں. بجٹ خسارہ بڑھ گیا، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، لوگوں کے پاس ان کی ظاہر ہے کہ جب قوت خرید ہی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا، ایک سیاسی ٹیمپریچر بڑھے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے کرائسس سے لیکن نہیں نکل پا رہی نا ابھی تک، تو اس کا کیا نتیجہ، کوئی سیاسی اس کا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت متظل علیہ اسحاق ڈار رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ٹیم نے الحمدللہ جو دیا وہ بھی الحمدللہ بے مثال ہے. اور اسد عمر رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5-6 مہینوں میں کنفیوژن اور نالائکی سے جو کیا وہ بھی الحمدللہ بے مثال ہے. صرف اسد عمر اس کا ذمہ دار نہیں، ظاہر ٹیم کا وہ ہے، ہیڈ وہ ہے نا. وہ نہیں عمران خان کو تو دیکھیں نا، دو چیزوں کو آپ کیا عمران خان اور اسد عمر یہ 2 واحد بندے تھے جن کو شور شاٹ تھا کہ ایک نے وزیر اعظم بننا ہے، ایک نے وزیر خزانہ بننا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھوکے ننگوں کے مقروضوں کے کیا بجٹ ہوتے ہیں، روز ہی بجٹ ہوتے ہیں، منی بجٹ ہوتے ہیں. اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح کہا جائے گا کہ جو حالات چل رہے تھے، جیسے وہ 8.4 جو آن گراؤنڈ ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے. وہ شماریاتی ڈویژن نے اور کوئی دیے تھے، اسٹیٹ بینک نے اور کوئی دیے، اور وہ امپورٹ ایکسپورٹ مارجنل کوئی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، ورنہ کوئی نہیں. 175 ارب 1000 ارب کا ریونیو شارٹ فال ہے آپ کا ان 5-6 مہینوں میں. تو اور جو ٹیکسز ہیں وہ بے شمار ہیں. تو مجھے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ جو کل کی سپیچ اچھی لگی ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کوئی وہ نہیں تھا، ود ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے ختم کیا، نان فائلرز والا زرعی آلات پہ ٹیکس ختم کیا، کسانوں کو ٹیکس دیا. گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق انہوں نے پہلے دن جو ہے وہ چلے ہیں کچھ نہ ہوتے ہوئے ختم کیا نہیں، ہو جائے گا پہلی جولائی. ایک آپ کا گھر ہے جس کا خرچہ ہے وہ کیا کہتے ہیں 4000 اور آپ کی آمدنی ہے 1000 اور آپ نے پورے محلے سے قرضہ لیا ہوا ہے اور پوری دکانوں پہ الحمدللہ سود ہے، آپ نے سود دینا ہے، سود نہیں دے پا رہے، اور روز آپ کا ابا جو ہے منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے ادھر سے نکل جاتا ہے، کبھی ادھر سے نکل جاتا ہے، اس میں گنجی نہ آئے گی کیا نچوڑے گی کیا. صحیح بات. تو یہ ویسے بڑا آسان فہم تجزیہ ہے. تو الحمدللہ یہ اب دعا کریں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے، ورنہ وہ تقریریں ہماری زندگیوں تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں کئی حسن حسین اور مریم اور بلاول امیر ہو گئے، یعنی ہمارے تک نہیں پہنچے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. امتیاز صاحب، ایک جو ہم عوامی پریشر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں، کوئی سامنے چیز نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف ڈیڈ لائنز ہیں عوام کی بھی، ان کے اپنے ووٹر کی بھی، لوگوں کی بھی. ابھی سے کہنا شروع ہو گئے کہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پریشر جو ہے اس میں کیا کرے گی یہ حکومت؟ سیاسی پریشر میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یا اسی طرح کی اپوزیشن جیسی ہو رہی ہے ہوتی رہے گی؟ دیکھیے، تبدیلی جو ہے اس کا حشر نشر ہو رہا ہے. چیف اسد عمر صاحب نے
वो काम कर दिया है जो तहरीक इंसाफ के माथे पे कलंक का टीका बनेगा। उन्होंने कहा अगर आपने जायदाद बाहर बनाई, अकाउंट्स बाहर बनाए, उस पर आपको पेनल्टी नहीं होगी, ना गिरफ्तार किया जाएगा, ना फांसी लगाया जाएगा। आप बस टैक्स देंगे, कुछ उसका वो कमिश्नर तय करेंगे और वो आप अपनी उस सारे धन को साफ कर लेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं इंसाफ की हुकूमत को जो ये करप्शन को खत्म करने जा रही थी। दूसरी बात ये है कि अब ये जो कह रहे थे 176 अरब रुपए का कब वसूल हुए हैं पिछले 3 महीने में एफबीआर को, इन्हें 70 अरब रुपए ज्यादा वसूल होने चाहिए थे क्योंकि 13% रुपए की कीमत और गिरी थी। आप भूल जाएं कि ये मालियाती खसारा क्या होता है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसे भूल जाइए। क्योंकि आज असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है हम तो मिडिल टर्म के हवाले से देख रहे हैं, अगले 3-4 साल 5 साल के हवाले से सोच रहे हैं। इस हुकूमत ने, मुबारक हो इस हुकूमत को, इसने 18 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया है। 18 अरब सऊदी अरब से, और हाँ 18 अरब डॉलर का। और अभी चीन का जाहिर नहीं किया जा रहा। आज उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अभी सामने आएगा, अगर वो भी आएगा तो फिर ये 20 अरब से डॉलर से ऊपर चला जाएगा। अगर चीन का सामने आ गया तो, यानी कि कर्जे ही कर्जे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर फारूक कह रहे हैं कि नहीं इतना नहीं। अच्छा, अभी जिसकी तारीफ की गई ये बात की, ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को, वो भी कर्जा है, वो भी उसके प्रॉमिसिंग नोट दिए जाएंगे। आप कहां इस मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं? कर्जों से निजात लाने के लिए आए थे, लेकिन वो करें क्या? फिर उनके पास क्या हल क्या है? साफी साहब आप ही बता दें क्या हल है उनके पास? ये सब कुछ किया धरा तो उनका नहीं है, ये बात उनकी दुरुस्त है कि जो कुछ मिला उनको विरसे में मिला। हाँ, क्या आप ये समझते हैं कि फैसले लेट होने से सारा कुछ हुआ? नहीं मिला था ये ऐसी अच्छा, इतना विरसे भी नहीं मिला था, ये सब झूठ है। अच्छा ठीक, साफी साहब करेंगे क्या आप? देखिए, मैं तो इकोनॉमी को नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन सेंस की बात है कि जाहिर बात है जाली लोग हैं, जाली मैंडेट है, उनका मईशत को टेकअप करने का तरीका भी जालसाजी वाला है। ठीक है, बिल्कुल साफी साहब, ठीक है, जबरदस्त। तो उसका तो मंतिकी नतीजा यही निकलना था। दूसरी बात यह है कि हम तो एक असद उमर साहब के जो बड़े भाई है और जो 71 के हीरो जनरल उमर साहब के दोनों एक तरह की साहबजादे हैं, तो कल भी उनकी तकरीर के बाद खुद उनके बड़े भाई कह रहे हैं कि मईशत तबाह हो रही है। दूसरा तो जाहिर बात है छोटे भाई के मुकाबले में तो हमें बड़े भाई की गवाही को तस्लीम करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे उस्ताद भी हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है और वो इकोनॉमी को समझते भी हैं, और इस हुकूमत ने ही उनको अपनी मईशत के लिए तर्जुमान बनाया हुआ था। और डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वो हुकूमत पहले उनको तर्जुमान मुकर्रर करने से इनकारी हो गई और उसके बाद जो है आप उनके ख्यालात अब भी आपने मुलाहिज़े किए। फिर एक और चीज़ जो हम आम आदमी, मसलन मैंने पिछले दिनों एक हुकूमत के हामी सेनेटर हैं और सेनेटर भी ऐसे जो लाडले सेनेटर हैं, जो बलूचिस्तान में पिछले इलेक्शन में सेनेट में जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई वो उसी खाते में आए हैं। वो एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके कारोबार की क्या सूरत हाल है, और अब हुकूमत के यानी हुकूमती ग्रुप के सेनेटर है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ 17,000 एम्प्लॉइज थे और मैंने उनमें 13,000 को फारिग कर दिया, सिर्फ 4 हमारे पास रह गए। जना सुपर के एक कपड़े के दुकानदार से मैंने पूछा कि भाई क्या सूरत हाल है कारोबार की, उन्होंने कहा कि हमारा 60 से 70% तक वो सेल कम हो गई है। और ये देखें कि जना सुपर वगैरह ये निस्बतन अमीरों की या अपर मिडिल क्लास की जगह हैं, गरीबों की हालत तो इससे और भी बदतर हो गई है। फिर जो डॉलर की कीमत बढ़ी है
उसकी वजह से हर गरीब के जेब में जो पैसे थे उसकी वैल्यू वो कम हो गई है। अच्छा, लेकिन मीडिया में देखिए, तो जितनी बिल्कुल सही बेरोजगारी है। आ रही वो तो आप देख रहे हैं। साफी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मसला ये है कि अब इससे निकलना है और जाहिर है कि हुकूमत इकदाम तो कर रही है। जैसे कल जो उन्होंने मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मंसूबों की बात की है, और फिर जिस तरह से सनती निकलने का आसमा, एक मिनट, आसमा निकलने का इसके सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वोट देने वाले तो पछता रहे हैं, जिस दिन वोट गिनने वाले भी पछता जाएंगे तभी इस सूरत हाल से हम निकलेंगे। ओए होए होए होए, बड़ा जुमला किया आपने, वोट गिनने वाले, क्या वो पछताएंगे कि नहीं? मैं ब्रेक के बाद ये ज़रूर सवाल उठाऊंगी, और फिर हम अभी तो बुज़दार साहब जो हैं उनके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म के लिए पछतावा बनेंगे या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि मैंने असद उमर साहब की तारीफ़ करनी है, तो मैं उनके पास जाऊं, क्विकली मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो ऑफ शोर एसेट्स वाली क्लॉज आई है, ऑफ शोर असासों की, कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा जो है अलीमा खान साहिबा को होगा और पहले नहीं थी, इसकी क्या ज़रूरत थी ऐड करने की? देखिए, एक डेफिनेशन है करप्शन की जो दुनिया भर में, और हमारा नैब कानून भी उसी को मानता है, और वो ये है कि अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, यानी कि आपने सरकारी दफ्तर को इस्तेमाल किया और अपनी प्राइवेट जेब गर्म की। ऐसे जो केसेस हैं उनको नैब जो है वो इंक्वायर करता है, कर सकता है। अलीमा खान वाला मामला एक तो सियासी एंगल है, एक कानूनी एंगल है। सियासी एंगल के ऑपोजिशन इसको इस्तेमाल करेगी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अलीमा खान के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, इस चीज को फायदा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। लेकिन कानूनी एंगल ये है कि अलीमा खान की जायदाद जो है वो पब्लिक ऑफिस के थ्रू नहीं बनाई गई। वो कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर ना वो खुद थी, सही बात, और ना इमरान खान लग गया दुख, ना इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे जिस वक्त ये जायदाद एक्वायर की गई। तो वो कहते मरियम नवाज भी नहीं थी उनके पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनके वालिद, तो आज भी इसी को क्लियर साहब ने जो मुलाकातें की हैं उसमें यही बात की है। ये अब आप आ गए हैं बेनामी वाला मामले पे। तो बेनामी वाला मामला मरियम नवाज के ऊपर इसलिए लागू होता है कि उनके वालिद साहब और पब्लिक ऑफिस होल्डर थे जब वो जायदादें ली गई थी। ठीक, यहाँ पे इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे जब ये जायदादें ली गई थी। तो अब कानूनी एंगल ये जरूर है कि इनकी कोई लेट्स से कि एक और जायदाद निकल आती है तो उसके ऊपर फिर एफबीआर उनको जुर्माना लगाएगा, या जो भी एफबीआर का कानून जुर्माने से काम चल जाएगा, जो कि इसमें नैब का मामला ये नहीं बनता। ठीक, कानूनी तौर पे अलीमा खान लीगल फ्री हैं, और सियासी तौर पे वो नहीं है। सियासी तौर पे उनको निशाना यहाँ पे चूंकि आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो छूट दी है, चले हम उस केस को नहीं करते, लेकिन जो ऑफशोर एसेट्स है जिन्होंने छुपाए, टैक्स चोर है जिसे हम कहना चाहिए, उनको सजा क्यों नहीं दी गई? मतलब इस हुकूमत से तो हमें उम्मीद थी कि ऐसा करेंगे। नहीं, छूट दी गई है इसमें, तो ये देखे ना, छूट दी गई है ना? डॉक्टर साहब दी गई है छूट। देखिए, इसमें एक तफरीक कर लीजिए, एक कहलाता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, जो सियासतदान है या सरकारी दफ्तर में है, उनको छूट किसी कानून में नहीं मिल सकती। अगर मैंने जायदाद बना ली है मुल्क से बाहर, लेकिन मेरा सरकारी दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि अगर पता चलता है और वो पैसे दे देते हैं तो बात खत्म। देखिए, ये कानून जितने भी हैं ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस पे लागू नहीं होंगे, तो बात खत्म हो गई फिर तो। सही बात है। इम्तियाज साहब, आप तारीफ कर लें, फिर मैं भट्टी साहब के पास आती हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं असद उमर साहब के लिए? एक तो मैं डॉक्टर फरक सलीम साहब से कहूंगा कि हसन निसार के अंजाम से सबक सीखे, और असद उमर के बारे में ये कहूंगा कि उसका मन IMF के साथ नहीं है, उसका मन न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के साथ नहीं है, उसका मन अयूब खान के मॉडल के साथ नहीं है। और इमरान खान कह रहे थे 2 पाकिस्तान नहीं चलेंगे, अब सारी हिकमत अमली असद उमर को 2 पाकिस्तान के गल्फ बढ़ाने के लिए है, 2 पाकिस्तानों का फासला बढ़ाने के लिए है। आज की जो कल की बजट की सारी तकरीर है, हाँ। असद उमर को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि उनके मन के मुताबिक नहीं है ये बात। सारे कंसेशन, सारी रायत कॉर्पोरेट सेक्टर को, नॉन फाइलर्स को दी गई है के लिए सर। तो मगर जिस सिस्टम में ऐसा, उसमें असद उमर क्या करेंगे सर? वो फरिश्ता भी बन के आ जाए तो जिस मुल्क में 14 लाख सिर्फ लोग टैक्स देते हैं, असद उमर, वो क्या करेंगे? अगर असद उमर एक बड़ा ताकतवर फाइनेंस मिनिस्टर है, कमजोर नहीं है, मुझे पता है,
लेकिन असद उमर पे मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि वो उसने बिल्कुल जो है ना लुटिया डबो दी है अपने नजरिया, सरेंडर किया। आप एग्री करते हैं इससे? और फिर दो पाकिस्तान की बात सरेंडर कर दिया है। अच्छा सर, वो बड़े दो पाकिस्तानों के सामने, ठीक, कारपोरेट सेक्टर के सामने और नॉन फाइनेंस के सामने और जो डिफॉल्टर्स थे और जो अपनी जायदादें बाहर बना रहे थे, ठीक उनके सामने सरेंडर कर दिया। अच्छा, असद उमर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, लेकिन ये दो पाकिस्तान की बात हो रही है। एक पाकिस्तान पंजाब भी है। असद उमर को सर मैं साने साहिवाल पे आ रही हूँ, पंजाब भी है एक, वहां पे आपको लगता है कि पाकिस्तान में वाकई कोई वहां पे तब्दीली नाम की कोई चीज आई है बुज़दार साहब की हुकूमत में? कोई साने साहिवाल का कुछ नहीं हुआ? हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो बुज़दार साहब की, उस्मान बुज़दार साहब की कैपेसिटी वो जितनी है वो हम सारों को पता है। वो नहीं, ये आधा पाकिस्तान है या 11 करोड़ का सूबा, पानीपत है पाकिस्तानी सियासत। तो इट वाज ए बैड चॉइस, इसमें तो कोई शक नहीं। डिसएडवांटेज, फ़ायदा नुकसान इमरान खान का है, उन्हीं को जाएगा। साहिवाल में एक मरतबा फिर मॉडल टाउन हो, कसूर की सड़कें हों, कराची की सड़कें हों, साहिवाल हो, एक मरतबा फिर यानी बताया उन्होंने कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक मुश्तबा दहशतगर्द, मान लिया ज़ीशान दहशतगर्द है, मान लिया साल से पीछा किया जा रहा है, मान लिया वदाश के लिए काम करता है, मान लिया सारा, भाई उसके लिए कोई, ये रियासत वही वाली फाइनली वही बात आती, रियासत माँ होती है। माँ इस तरह बच्चे मारती है, कोई सरेंडर करना, कोई करना, फिर उसके बाद कोई उनको करना, जैसे कवर अप किया और फिर दूसरी बात ये है कि आपका काम आपने करवाया, आपने कोई मीटिंग की थी इसके लिए कि जाके उनको मारना है? कोई हुकूमत इन्वॉल्व थी इसमें? हुकूमत क्यों पार्टी बनी? हुकूमत को तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। कवर अप करने की कोशिश, एक के बाद एक वजीर इधर से बोला, फयाज साहब, फवाद साहब, बिशारत साहब, सारे और पूरे उन्होंने वो CTD क्यों, किस लिए आप, यानी इस तरह का वाकया कहीं भी हो सकता है, इस तरह का रद्द अमल कहीं नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो बुज़दार साहब की तब्दीली आप कह रहे हैं कि वो नविश्ता दीवार है या नहीं? प्राइम मिनिस्टर वसीम अकरम को नहीं, मैं कह रहा हूँ वजीर आज़म साहब की तो ये तो सारी उम्र के, मंसूर अख्तर वो क्रिकेटर होता था, फेल पे फेल वो कहते थे नहीं मैं खिलाना है, तो बड़ा अच्छा ओपनर है। अब कुछ अरसे पहले वो बातें करते हैं कि यार वो क्यों नहीं सी चलता, अच्छा, फर्स्ट क्लास में चलता था, वो उधर नहीं चलता। तो ये उनका एक तरीका कार है। 11 खिलाड़ियों के साथ वो आज भी खेल रहे हैं, वो आज भी ग्राउंड में ही हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम के बारे में कोई बात करे तो वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, अगले मैच में पहले से डाल देते हैं। अच्छा सलीम साफी साहब, आप एग्री करते हैं कि क्या इस वाक़े के बाद सारे जो सवालात हैं वो बुज़दार साहब के ऊपर उठ रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है? क्या वज़ीर आज़म भी सोच रहे हैं या नहीं, वो कहते नहीं इन्हीं से काम चलाना है मैंने? नहीं, एक तो ये कि बुज़दार साहब बेचारे का क्या कसूर है। हम वो मजजूब आदमी है, उसके पीछे हम पड़ गए हैं। देखिए, सोच समझ के इस मुल्क के लिए ऐसे हुक्मरानों को ढूंढा गया। बाकी दुनिया में ये किया जाता है कि पूरी तहकीक की जाती है, तजस्सुस की जाती है, तलाश की जाती है, और किसी मनसब के लिए कॉम्पिटेंट बंदे को ढूंढा जाता है। इस मुल्क में पूरी तलाश की जाती है, ज़ोर लगाया जाता है, तमाम तर वसाइल बरूईकार लाए जाते हैं किसी मनसब के लिए, कठपुतली को तलाश करने के लिए। अब ज़ाहिरी बात है कि मुल्क की सतह पे मुल्क को ऐसे फ़र्द के सपुर्द किया गया जिसमें कठपुतली से ज़्यादा सलाहियत है, और उसने फिर ये किया कि पहले वज़ीर आज़म पंजाब में पूरी तहकीक की ऐसा कौन सा बंदा होगा जिसकी अपनी न कोई सोच होगी, न से होगी, न विल होगा, और वो मेरा सबसे बड़ा कठपुतली बन सकता है। यही काम पख्तूनख्वा में भी किया गया। जिस तरह पंजाब असम्बली के अंदर बड़े तजुर्बाकार लोग थे, ख़ुद PTI के, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को 5 साल का तजुर्बा था, उसको इधर लाया गया। फिर उनके साथ आतिफ खान थे, उनके साथ शाह फरमान, अभी महमूद खान साहब को दे दिया, आतिफ खान पूरी तहकीक करके बिल्कुल महमूद खान को कर दिया। और ये तो इधर पंजाब की तरफ तवज्जो है, खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी बड़े ड्रामे हो रहे हैं। तो जाहिरी बात है कि जब आप तलाश करते हैं, मेहनत करते हैं कठपुतलियों को तलाश करने के लिए, तो फिर तो जाहिर बात है यही सूरत हाल होगी। तो अब मैं साने साहिवाल को भूल जाए सर, फिर इसका मतलब है कि साने साहिवाल के ऊपर जो है वो साहिवाल भूल जाए कि मुझे तो ये फिक्र लाहक है, हाँ। मुझे तो ये फिक्र लाहक है। आप देखिए साहिवाल की हैंडलिंग को, एक वजीर कुछ, दूसरा वजीर कुछ, वफाकी हुकूमत कुछ, पुलिस कुछ,
इसी तरह आप मरकज में देखें कि इकोनॉमी का क्या हशर कर दिया गया। एक दिन कहते हैं IMF के पास जाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं जाते, तीसरे दिन कहते हैं हम ये करेंगे, दो मिनी बजट। मैं तो कहता हूँ खुदा न खास्ता इस दौर में इस मुल्क में कोई बड़ा क्राइसिस ना आ जाए या कोई इंडिया के साथ ये जंग कल ना हो मुराद जाए, अली ये लोग शाह क्या ने करेंगे? आप एग्जैक्टली यही अंदाजा बात करें की कि और उनके ये ऊपर एक- बड़ी तनकीद हुई है। भट्टी साहब हंस रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद उनकी वो बाइट जरूर किसने चलाना बात की? चाहूंगी। किसने की? मुराद अली शाह साहब जो सीएम है ये सिंध कहाँ के, के? सिंध के और सिंध में कैसे हालात हैं? सिंध में इससे तो पंजाब से तो बेहतर है, उन्होंने अच्छा, रेवेन्यू भी ये- बेहतर कलेक्ट ये- किया ये है, रेवेन्यू भी बेहतर कलेक्ट किया अभी है। और जो सर्वे आया था उसमें सिंध सबसे अभी पहले था। अभी कल जस्टिस गुलजार कह रहे थे कि नहीं चलता ना, हाँ। तो किसी को ठेके पे दे दो। सिंध या पाकिस्तान? नहीं, कराची और उसके बाद सिंध और उसके बाद वो सारा डाइन। आपके ख्याल में पाकिस्तान चल रहा है? हाँ हाँ, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। सिंध ऐसे ही में अल्लाह चल रहा है, तवक्कल, पाकिस्तान चल ऐसे ही रहा है। अल्लाह तवक्कल पे चल रहा था। पहले शाही टब्बर थे, ऑटो पे। अब शाही लोग आ गए हैं। ऑटो पे लगा हुआ है। हाँ, अल्लाह अच्छा, फिक्र ना मैं- करें, मैं- फिक्र ना करें इस बारे में। उस वक्त नहीं ख्याल आया था जब शाही टब्बर थे चल नहीं, दो बिल्कुल चार। आया था। वो कौन सा कोई पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा के गए हैं आप और मैं, तो फिर भी पिसते रहे, अवाम पिसते रहे। हाँ। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नईमुल हक साहब ने कल बड़े शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ट्वीट्स किए थे कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स खत्म हो सकते हैं अगर आपने बिहेव नहीं किया। इसके पीछे क्या कहानी है? ये सब हमारे पास आज बड़े सीजन्ड लोग हैं, इनको पता है। ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम दो हुकूमतों, दो पाकिस्तानों की बात कर रहे थे और इंसाफ नहीं मिलेगा, ये एक सवाल था साने साहिवाल के हवाले से और बुज़दार साहब की जो अहलियत है उसके ऊपर भी। लेकिन मैं इससे पहले कि अब चूँकि आखिरी पोर्शन है, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भट्टी साहब, अभी आपने कल ट्वीट्स देखे होंगे जनाब नईमुल हक साहब के। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि बिहेव करें वरना आपके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं आएंगे। इसके पीछे आपको क्या कहानी लगती है? देखिए, एक तो नईमुल हक साहब फरमा रहे हैं, एक मार्जिन तो ये दें। दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन बातें उनमें है कि एक तो चूंकि प्रोडक्शन ऑर्डर देता है स्पीकर उनका है, तो इसलिए एक वो। दूसरा वो जाहिर है एक जो PAC का कमेटी का चेयरमैन, मिनिस्टर बंगले में दांतों की फिलिंग और वो मसाज और फिजियोथेरापियाँ, 3 डॉक्टर का आना, रात के खाने, उधर दूसरे भाईजान गालिब और इकबाल पढ़ रहे हैं और वो हीटर के साथ बैठ के तो वो गाजर के हलवे और वो चल रहे थे। तो ये तो बम्पर ऑफर है ना। लेकिन मेरा इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि ये देखे ना, ये कैदी असम्बली मेंबर प्रोडक्शन ऑर्डर पे आ सकता है, फाइन आपने कर लिया। ये जमहूरियत होती है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सारों के लिए भी। तो ये जो प्रोडक्शन हूंटा है ये हमें भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एंकर पकड़ा जाता है, हाँ। तो एक रूल पास करें कि वो भी आए जेल से आए, ना शायद मसूद साहब को नहीं, वाकई शायद मसूद साहब को तो ये सहूलत नहीं है, ये सहूलत दें, बल्कि इतनी ज्यादती उनके साथ शायद मसूद साहब को ये सहूलत दें कि वो आके टीवी शो करें, रात को घर चले जाएं। एक टीचर को ये सहूलत दें कि वो अपनी क्लास पढ़ाए, घर चला जाए। डॉक्टर को सहूलत दें कि वो आए और ऑपरेशन करे, और अगर मरीज जरूरी हो तो मिनिस्टर कॉलोनी के बंगला नंबर 27 में वो क्याम भी करे। तो पहली बात ये। दूसरी बात है, मैं नईमुल हक साहब को माजरत चाहता हूँ। नईमुल हक साहब वो कह रहे थे कि इमरान खान की बेइज्जती की है उन्होंने या उनकी इज्जत नहीं की। जी। इमरान खान ने प्रोडक्शन ऑर्डर दिया, इमरान खान ने महसूस नहीं किया, क्यों दिया है महसूस साहब आपके ख्याल में? और दूसरी बात है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फवाद साहब माफी मांग चुके हैं इसमें, और ये अगर इतने योग्य होते तो उनको PAC का चेयरमैन ना बनाते। यही बात है। लेकिन आखिरी बात ये है बेसिकली कि ये मुझे डर है कि अभी उन पर प्रेशर पड़ेगा, ये नईमुल हक साहब ने माफी भी मांग लेनी है। अच्छा, ये इतने ताकतवर हो गए शहबाज शरीफ साहब, सलीम साफी साहब, आपको लगता है कि इतने ताकतवर हैं? देखिए, एक तो नईमुल हक साहब जो है वो मेरे ख्याल में ऐसे ही लगे हुए हैं। वो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये पता नहीं नॉन सीरियस और जाली लोगों की एक हुकूमत है, और शहबाज शरीफ साहब का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शहबाज शरीफ साहब ना नईमुल हक के लीडर के मर्जी से असम्बली में लाए गए हैं, ना उनकी मर्जी से वो ये PAC के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनको कौम के वसी तर मफाद में असम्बली में भी लाया गया और कौम के वसी तर मफाद में उनको PAC का चेयरमैन भी बना दिया गया। और जब तक वहाँ से ग्रीन सिग्नल है तो ना नईमुल हक कुछ कर सकते हैं, ना उनके वज़ीर आज़म कुछ कर सकते हैं। तो ये वैसे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सही, यानी कि पावर कॉरिडोर्स जो हैं वहाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो
काफी वो मकबूल आपने हैं फिक्रा सुना और था? इसीलिए वो खटकते हैं दिले यज़दा में कांटे की तरह। दिले यज़दा मैं कुर्बान जाऊं, वर्ल्ड बैंक तो कर्जा लेके शॉपिंग भी करावांगा। इम्तियाज साहब, फिर पिंग प्यार दी झूठांगे। ये पिंग प्यार की जो है ये शहबाज शरीफ साहब के लिए, आप एग्री करते हैं सर कि वो वाकई वो उनकी इसीलिए उनको धमकी मिल रही है क्योंकि वो पॉपुलर है बहुत वहां पे पावर कॉरिडोर। इमरान आएगा इलामा इकबाल, दिले यज़दा। इम्तियाज साहब को आवाज नहीं जी नईमुल हक साहब जो है बड़े माफाकुल फितरत कुत्ते उनके कंट्रोल में हैं और वो जाने क्या क्या कहते हैं और उनकी बात सुने, उनका जरा अंदाज देखे कि असेंबली में आना, लीडर भी ऑपोजिशन का बंद कर देंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर बंद हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। देखिए ये क्या, इन्हें ना जमहूरियत का पता है, ना इन्हें पार्लियामेंट का पता है, ना इन्हें पता है कि अपोजिशन के साथ कैसे बिहेव करना है। आज में वो जो इनका समाज का मिनिस्टर भी है और एमएनए है मुराद सही, उसकी तकरीर सुन रहा था। अब ये क्या चाहते हैं कि असेंबली की कार्रवाई ना हो? ये कैसी हुकूमत है जो चाहती है कि पार्लियामेंट काम ना करे? सर पार्लियामेंट पहले ऐसे कौन सा काम हवालत करे? लोगों अल्लाह आप पे भला करे। इस वक्त इस जो एक सूरत कुंडे है, में मतलब आपको मेरे भिजवाऊं। जैसी प्रो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो खातून है वो ये कह रही है कि कहाँ काम हो रहा है डॉक्टर साहब? 6 महीने में कोई कानून तो नहीं बना। कोई कानून नहीं नहीं, बना। नहीं, पिछले ये कानून बन जाएगा पिछले ये मालियाती बिल मंजूर हो पिछले जाएगा 5 साल में 5 मालियात- काम। अभी बताएं, आप तो पार्लियामेंट कवर करती, माशाल्लाह आपका तो इतना एक्सपीरियंस है। 5 काम बताएं पिछले 5 पिछले साल। पार्लियामेंट में बहुत सारे हुए हैं। I mean, 5 अब मुझे सरे दस तो नहीं, याद नहीं कवानीन है तो मगर कवानीन तो सारी बहुत से नहीं, पास नहीं, हैं। वो- ठीक है, पीपल्स पार्टी ने ज्यादा कवानीन हाँ, पास हाँ, किए, उसके फिर भी तरामीम याद की, है, फिर मगर भी यहाँ याद है। मिलिट्री कोर्ट्स बनी इस पिछली पार्लियामेंट के अंदर, 21वीं बहुत सारा कुछ amendment हुआ, जो की 21वीं गई। तरमीम हुई, बहुत सारी चीजें हुई हैं। देखिए और भी मैं बता दूं कि बाद में रियासती इदारों को और हुकूमत में अगर हम तफरीक रख लें, ठीक। देखिए ये तफरीक बड़ी ज़रूरी है। हुकूमत चाहे पीटीआई की हो, पीएमएलएन की हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हो, रियासती इदारों ने अपना काम अलग से करना है, चाहे वो एहतसाब का काम हो या वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स वाला काम हो। रियासती इदारे हुकूमत से अलग अपना काम करते रहें और करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है और हुकूमत से अलग रहें। लेकिन साफी साहब हुकूमत से अलग रह के काम कैसे? अभी इस वक्त तो सब एक पेज पे हैं, तो अच्छा काम चल रहा है, ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको लगता है कि पेज पे होने के बावजूद अच्छा काम नहीं चल रहा? लास्ट कमेंट सर। सारी आसमा, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, पहले भी गुफ्तगू के समय आप अगर अपनी सवाल को दोहरा सकते। मैं ये कह रही हूँ कि सब अब तो सारे इदारे एक पेज पे है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रियासती इदारे अपना काम करें, हुकूमती इदारे अपना काम करें, तो अब सब एक पेज पे है तो ज्यादा अच्छा काम होना चाहिए ना? नहीं, ये कहना गलत है कि सारे इदारे एक पेज पे हैं। इस वक्त हुकूमत और